the yesterday class, we discussed what is the HTML form, okay, and what are the various input types, okay, and then we discussed how can we customize these input tags. For example, if you want to add checkboxes or radio buttons or text, so we have some ways to customize this input tag. Today we'll see some more action, then we'll jump on to the practical part, that is how to design a form. So we'll go through the theory first and then we'll jump into the practical session. Okay, so if you can see, form has various attributes. Okay, so one of the attribute of form is the action attribute. The action attribute defines the action to be performed when a form is submitted. For example, if you can see this, here it says action is equal to action underscore page dot php. So as I've already discussed with you earlier, that in case of a form, whatever data that is filled by the user or input by the user is sent to the server. So there must be some server side page which must be running on the web server. It must be running on the web server. So as of now we have not done this. अभी तक हमने ये सब नहीं किया है ना, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है. So this thing we will do in the 5th unit. Okay, so as of now you just remember that form has an action field और उसमें हम क्या लिखते हैं, हम किसी पेज के URL का नाम लिखते हैं. For example, in this case is action page dot php. Okay, fine. Yes sir. Okay, so then label भी मैंने कल आपको बताया था. लेबल क्या करता है, it's a text that is displayed. Then input type is equal to text, जिसमें हम क्या लेंगे, यूजर से उसका फर्स्ट नाम लेंगे. Then label is L name, last name. Again input type is equal to text, and then we have a button which does this. Okay, एक चीज और ध्यान में रखिए, the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button. ये फाइल कौन सी है, ये फाइल है action page dot php, which is again hosted on the server. Okay, we will move next. Do you have any question here? Yes, any guess what is PHP? सर्वर साइड लैंग्वेज. हाँ, ये क्या है, ये है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दिस इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज. ऑलमोस्ट ऑल द वेबसाइट दैट रन्स ऑन द इंटरनेट, उसमें से कोई 60% साइट्स जो हैं वो PHP पे रन करती हैं. ओके, यस सर. I will see in the subsequent chapters, but as of now आपने याद रखना है फॉर्म का एक एट्रीब्यूट क्या है, एक्शन. देन देयर इज अ टारगेट एट्रीब्यूट. क्या है टारगेट एट्रीब्यूट, ये बताता है कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो डिस्प्ले हमें करना है उसका रिस्पॉन्स वो कहाँ करना है. अगर आप चाहते हो कि क्या करे, न्यू विंडो या न्यू टैब में होए तो हम क्या लिखेंगे, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक. अगर हम लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ तो क्या होगा, ये करंट विंडो पे ही आपका डिस्प्ले होगा. अगर हम क्या लिखेंगे पेरेंट तो क्या होगा, जो उसका पेरेंट फ्रेम होगा उस पे इसका रिजल्ट आएगा. अगर हम क्या लिखेंगे टॉप तो ये विंडो के फुल बॉडी के ऊपर इसका रिस्पॉन्स आएगा. अगर आप फ्रेम नेम दोगे तो उस फ्रेम के ऊपर ये डिस्प्ले होगा. तो टारगेट एट्रीब्यूट बेसिकली टेल्स कि जब हम उसको सबमिट करेंगे तो रिस्पॉन्स कहाँ पे आना चाहिए, अलग पेज पे आना चाहिए कि सेम पेज पे आना चाहिए. दैट इज व्हाट the target attribute does. Let's move next. Then there is another attribute called as method. ये हमने पहले भी पढ़ा है. HTTP के methods हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो in the second unit में जब हम HTTP पढ़ रहे थे. So if you remember we discussed there are two kind of methods. कौन कौन से होते हैं, get and पोस्ट. ठीक है ना, एक होता है get, एक होता है post. जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, get, बट जब हमें एसिंक्रोनस काम करना होता है वी मेक यूज ऑफ पोस्ट मेथड. ये भी आज हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, देन इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टूड. ओके, सो लेट्स सी द डेमो पार्ट फर्स्ट. ठीक है, इतना हमने किया, इसका हम क्या करेंगे, डेमो देख लेते हैं पहले हम. तो व्हाट विल वी डू, इज इट विजिबल, पहले बताइए आपको ये दिख रहा है PPT, इज इट विजिबल? Yes sir.
Okay. Can you see the Atom browser? Atom, sorry, IDE. Yes, sir. दिख रहा है आपको? Okay. Give me 1 minute. I have a call. एक minute. Okay, so can you see the screen now? Yes, sir. Atom आपको दिख रहा है ना? No, sir. नहीं दिख रहा? No, sir. किसी को भी नहीं दिख रहा? मुझे दिख रहा है सर. Okay, मुझे भी I दिख will रही है, सर. दिख रहा है ना? Okay, fine. So file I will say new window. Sorry, not new window, new file. फाइल में न्यू फाइल. सो व्हाट आई विल डू इज इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ. इसको नाम देता हूँ मैं form1.htm. ठीक है. तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डॉक टाइप. क्या मतलब होता है डॉक टाइप का? HTML version 5. यस, it's a HTML latest version. Okay, then we write HTML. इसका क्या मतलब हो गया? ये एक HTML डॉक्यूमेंट है. ये टैग डिफाइन करते हैं HTML का स्कोप. देन वी राइट ऑन हेड. हेड में क्या होता है आपका? हेड में क्या आता है आपका? टाइटल. Yes, sir. टाइटल में हम क्या लिखेंगे? माई. सो विल राइट एज registration form. Okay, fine. Then what we have? Something called as body. So what we write in the body? इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा हम अलाइनमेंट भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए किसके अंदर क्या. ओके, सो बॉडी के अंदर हमने आज क्या देखना है? एक नया टैग देखना है. दैट इज द फॉर्म टैग. और फॉर्म में आपको पता है हम सिंपल बनाते हैं पहले, नॉट फैंसी टाइप, वेरी सिंपल एप्लीकेशन. तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ओके, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था? लेबल. ओके, एंड ओके जस्ट ए मिनट. सो लेबल और फॉर लिखेंगे से उसका नाम हम लिखेंगे फर्स्ट नेम. इसको हम बंद करेंगे. इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट नेम. ओके, इसके बाद हम क्या कर देंगे? ब्रेक भी डाल देंगे. और हमने क्या लिखना है? इनपुट. ये आपसे इंपॉर्टेंट टैग है हमारा, पर्टिकुलरली जब भी हमें यूजर से इनपुट लेनी है. और हम इसमें क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू, देयर आर वेरियस टाइप्स बट हमें क्या करनी है? टेक्स्ट देना है. ठीक है. उसका नेम हम क्या लिख देंगे? एफ नेम. और आईडी क्या लिख देंगे उसका? एफ नेम. इसको हम क्या कर देंगे? क्लोज कर. ओके, एंड अगेन वी कैन पुट ब्रेक. इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रीलोड करने की कोशिश करते हैं. सो इफ आई गो टू डेस्कटॉप, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, तो हमने जो बनाया है उसका नाम है form1. तो इफ यू कैन सी, ये हमारा क्या आ गया? आर यू एबल टू सी? इज इट विजिबल Yes, sir. अच्छे से Yes, सबको? sir. ओके, सो अगर आप देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको? First name. फर्स्ट नेम दिख रहा है विच इज द मनमीत. लेबल, है ना? Yes, sir. फर्स्ट नेम जो है वो जो आपका लेबल है. और ये क्या है? हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें Text. यूजर क्या कर सकता है? कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है. फॉर कर एग्जाम्पल सकता है. अभी अभी मैंने क्या एंटर किया? समीर. अमीर. अभी अमीर.
Amit. Okay. Then who is the third one? Third one to join is Kamar. Number. Okay, ये सबको विजिबल है, कमर, समीर एंड आमिर. Yes, sir. ओके फाइन. तो हम थोड़ा सा आगे Yes, करें sir. और ओके. तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ. तो एफ नेम के बाद सेकंड हम क्या लिखते हैं, लास्ट नेम. ओके, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एल नेम. ठीक है, नॉट अ बिग डील. आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया. Yes, इसको sir. Yes, sir. सेव सेव करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं. तो इधर भी आप देखोगे क्या हुआ. गाइस आपको विजिबल है कि नहीं बताइए. Yes, sir. Yes, Visible sir. है. तो क्या हुआ, अब क्या आ गया. Last name. हाँ, हमारे पास दो जो है टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए हैं, है ना. एक में मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम एंटर कर सकता हूँ, और दूसरे में मैं सेकंड नेम एंटर कर सकता हूँ. isn't it? Yes, sir. Okay, so this is fine. Okay, then we have something called as input type is equal to submit. Type is equal to सबमिट. ये भी हमारा क्या आ जाएगा, तो नेम हम इसको दे सकते हैं सबमिट. आईडी इज इक्वल टू सबमिट. इसको भी हम सेव करके दोबारा देख लेते हैं. तो अब क्या हुआ, Submit आ गया. ये बटन आ गया ना आपका सबमिट. Yes, sir. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिए इसको, जब मैंने सबमिट को क्लिक किया तो क्या हो गया, देखिए क्या हुआ. सबमिट को क्लिक करने से इसने क्या कर दिया, यूआरएल को चेंज कर दिया. यूआरएल को चेंज कर दिया. इसने क्या लिखा, एफ नेम इज इक्वल टू स्पेस एंड लिखा एल नेम इज इक्वल टू स्पेस सबमिट इज इक्वल टू सबमिट. नाउ सपोज इसमें मैं क्या लिखता हूँ मनमीत, इसमें मैं लिखता हूँ सिंह, इसमें मैं लिखता हूँ सबमिट. तो अब मेरे यूआरएल में क्या हो गया, एफ नेम के बाद क्या आ गया, मनमीत. ओके, एंड एल नेम के बाद सिंह. सिंह, एंड सबमिट के बाद क्या आ गया आपका, सबमिट आ गया. Submit. ओके, तो जब भी आपके यूआरएल में ये वैल्यूज आ जाएं तो इसका मतलब कौन सी रिक्वेस्ट है, ये कौन सा मेथड है, ये इससे गेट मेथड. क्या है, Get method. गेट मेथड. ठीक है, अभी डिफॉल्ट मेथड आपका गेट ही होता है. तो लेट मी डू दिस, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट करता हूं मैं. ठीक है, अब देखना क्या होगा. तो मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, मैंने क्या किया, सेंड समीर अहमद. मैं क्या करूंगा, सबमिट. तो अब ऊपर कुछ आया, यूआरएल में कुछ आया, No, sir. No, sir. नहीं आया ना कुछ. तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पोस्ट मेथड हुआ. ओके, तो जब मैं इसको क्या करूंगा, गेट करूंगा, तो अब देखना क्या होगा. गेट करने में क्या होगा, ओके जस्ट ए मिनट, मुझे इसको रीलोड करना पड़ेगा. तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना पड़ेगा. अब क्या आ गया ऊपर, देखिए यूआरएल, देखिए क्या हो रहा है. यस प्लीज. Sir, अब नाम आ रहा है फर्स्ट नेम आ रहा और है ना, नाम आ रहा है ना, पैरामीटर्स भी आ रहे हैं. ओके, यस सर. तो जब हम गेट करते हैं तो पैरामीटर कैसे पास होते हैं, इन द यूआरएल. ओके, तो जब हम उसको पोस्ट करते हैं तो वो यूआरएल में पास नहीं होते, वो बॉडी में पास होते हैं. तभी जब हमने इनका डिफरेंस पढ़ा था ना, तो हमने लिखा था कि गेट में हमारी लिमिटेशन है कि गेट में उतने ही वैल्यू आ सकती है जितना आपका यूआरएल अलाउ करेगा. अगर आपका यूआरएल ज्यादा वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा तो आप उसमें गेट में डेटा सेंड नहीं कर सकते. ओके, so that is one of the difference between get and post. Okay, पोस्ट. so these are two methods that by which we can submit data to a form. Okay, अब हम तो कुछ और भी देखते हैं. Okay, so what we'll do is we will add some things more. Okay, कुछ चीजें हम और ऐड करते हैं, जैसे कि सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे ले रहा हूँ जेंडर.
ओके, अगर आपको याद हो तो कल भी हमने जेंडर के लिए भी लिखा था ना, program will copy that thing. Okay, so this was for gender. We'll copy this, है ना, otherwise हम unnecessarily time waste भी करेंगे. So I will paste this thing क्योंकि ये HTML जो है अपना. Okay, just a minute. Okay, I will save this and let's run this. तो अब बताइए क्या आ गया, मेल फीमेल अदर आ गया, बट हमारे वो नहीं आ रहे हैं. जस्ट ए मिनट. ओके, जस्ट ए मिनट, इसको हम उसमें ओपन करते हैं. जस्ट ए मिनट. ओके, input type is equal to radio, id is equal to male, name is equal to gender. Okay, just a minute, somebody is trying to join. Okay, आमिर ने join किया. So input type is equal to radio लिख लिया, id is equal to male, id is equal to female, id is equal to other, name is equal to gender. Okay, so this should be fine. I don't understand why it's not this working. So हम इसको 2 मिनट उसमें खोलते हैं एज में, because there are sometimes there are browser incompatibilities जिससे कि वो हर किसी पे नहीं चलता. Let me see. इस पे भी ये नहीं आ रहा है. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं आ रहा है. ओके, we'll put a break here. Just 1 minute, give me. Okay, so we'll copy this one. So where is our gender? Okay, this is our gender. So we'll paste this here. Let's save this. Okay, so now this is coming. Okay, so अगर आप इसको ध्यान से देखो, अब आपके रेडियो बटन आ गए ना. Yes, sir. Okay, so I think we have to use some kind of a paragraph, उसी में इसको करेंगे तभी ये आएगा. Input type is because more or less ये context जो आपका सेम है. Okay, so maybe last time हमने label close नहीं किए थे, that's why it was not coming. Okay, anyhow, so what we have to do is input type is equal to radio, id is equal to male, name is equal to gender, value is equal to male. अगर हम ये लिखेंगे तो इससे क्या होता है. अब इनकी एक प्रॉपर्टी देखिए, जब मैं फीमेल को सिलेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है. हेलो. सर एक सिलेक्ट होगा तो दूसरा नहीं हो पाएगा. हाँ, अगर मैं अदर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेल फीमेल जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ, अगर एक को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी दो हैं वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे. तो अगर मैं मेल को सिलेक्ट करता हूं तो बाकी नहीं हो पाएंगे. तो इसमें सिर्फ हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते. ओके,
नाउ लेट्स डू चेक बॉक्सेस, थोड़ा सा चेक बॉक्सेस को भी हम देख लेते हैं. We'll copy this. आई थिंक इसमें भी ना कुछ वो अलग क्रिप्टिक टेक्स्ट है जिस वजह से ये let's see if it works. तो अब हम क्या कर रहे हैं, चेक बॉक्सेस को देख रहे हैं कि चेक बॉक्सेस जो हैं क्या वो आते हैं कि नहीं आते हैं. ओके, तो हम एक ऊपर क्या लिखेंगे, प्लीज सिलेक्ट, हम क्या लिखते हैं, प्लीज. So we'll save this and we will reload this. No, again no. There is some issue I think checkbox इधर ना जो हम उससे कॉपी कर रहे हैं ना. Input type is equal to p. कोई दिख रहा है एरर क्या है? बट देर इज सम एरर जब हम सर पीपीटी से. आपने स्लैश हाँ, नहीं दिया वो एंड पे स्लैश. इस पे सर इनपुट टाइप चेक बॉक्स व्हीकल वन बाइक, फिर आएगा ना सर स्लैश. नहीं, वो तो उसके बिना भी चलता है. कुछ और इशू है जब मैं पीपीटी से कॉपी कर रहा हूँ ना, देर आर सम इश्यूज. जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं. डबल कोड तो हर जगह बंद हो रहे हैं. इनपुट आईडी इक्वल टू हो गया, नेम भी हो गया, वैल्यू भी हो गई. ओके, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक इट प्रॉपर्ली. इसमें देखिए पी आ रहा है प्रॉपर, इनपुट भी आ गया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. आई थिंक इसको हम वी जस्ट कॉपीड फ्रॉम द, हम इसको थोड़ा ना गूगल से ही कॉपी करते हैं. अदरवाइज वी कैन राइट इट डाउन. ओके, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं. सो व्हाट विल डू इज विल कॉपी दिस वन, बिकॉज पीपीटी से जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ देर आर सम इश्यूज, वो उसको फॉर्मेटिंग में सही नहीं कर रहा. दैट्स व्हाई देर आर सम एरर्स. ओके, विल सेव दिस एंड विल सी दिस. अब देखिए, अब देखिए, कैन यू सी द चेक बॉक्सेस? यस सर. सभी दिख रहे हैं ना? तो अगर मैं एक को सिलेक्ट करूं, मैं दूसरा भी कर सकता हूं, मैं तीसरा भी कर सकता हूं, है ना? यस और सर. ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई भी सिलेक्ट ना करूं, या लास्ट टू सिलेक्ट करूं, या फर्स्ट और लास्ट सिलेक्ट करूं. ओके, तो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आप जीरो या जीरो से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, या सभी सिलेक्ट कर सकते हो. बट इन केस ऑफ रेडियो बटन वी कैन ओनली सिलेक्ट वन, वी कैन नॉट सिलेक्ट ऑल. ओके, एंड इसमें अगर मैं लिखूंगा, say I will say Amir, if I say Khan, and if I say select as male and if say bike भी है, कार भी है, you click on submit. तो अगर आप देखेंगे क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स जो आपकी हैं वो इसके साथ ऐड हो गई, isn't it? जो जो यस सर. फॉर्म में इनपुट वैल्यूज थी उनका पेयर जो है, दिस इज नेम और उसकी वैल्यू, लास्ट नेम खान, जेंडर मेल, व्हीकल वन इज बाइक, व्हीकल टू इज कार, व्हीकल थ्री इज बोट एंड सबमिट इज इक्वल टू सबमिट. तो वो सभी वैल्यूज जो हैं इसके साथ अपेंड हो गई हैं. ओके, so this is how we design a form in HTML and this is how we collect a value. बट अभी तक हमने इसमें प्रोसेसिंग नहीं देखी क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्रामिंग नहीं देखी है. ओके, यस और नो? यस है सर. ना, अभी तक हमने नहीं देखी ना, तो हम इसमें दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते अभी क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं देखी. तो इन द थर्ड यूनिट विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट में हम आके आपकी इसमें प्रोग्रामिंग देख सकेंगे. बट एज ऑफ टुडे यू शुड बी एबल टू डिजाइन ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ठीक है, यूजर से जेंडर लेना है, यूजर से इनपुट लेना है कुछ. ओके, सो दिस थिंग यू यस शुड सर. बी एबल टू डन. ओके, लेट्स मूव टू द फाइनल पार्ट ऑफ द पीपीटी. पीपीटी के कुछ रह गए हैं हमारे पार्ट. जस्ट विल गो टू DHTML. Okay, DHTML is what?
DHTML stands for, is it visible? Yes sir, dynamic hypertext markup language. ओके, तो अगर आप देखें HTML क्या है आपकी, HTML इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि वो चेंज नहीं होती है ना, Yes sir. इट रिमेन्स सेम एंड इट डजंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये चेंज नहीं होती है। सो आपको पता है कि जो चीज टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो उस पे फिर लोग बार बार नहीं आएंगे। तो अगर आप देखो फेसबुक पे आप बार बार क्यों लॉग इन करते हो? यस प्लीज। Sir. फेसबुक पे आप बार बार लॉग इन क्यों करते हो? क्योंकि वो Sir, क्या है, static डायनेमिक। नहीं, वो dynamic है. डायनेमिक है ना, हर बार चेंज होता है ना। हर आप 5 मिनट के बाद दोबारा देखो कोई और न्यूज आ जाती है, कोई और की पोस्ट आ जाती है, किसी के लिंक आ जाते हैं, किसी के वो आ जाते हैं, है ना। तो इफ यू Yes sir. सी क्लियरली, HTML जो है आपका, सॉरी फेसबुक और ये जो है ये डायनेमिक हैं। ये हर सेकंड के बाद चेंज हो जाते हैं, कोई नया कुछ करता है वो भी आपको आ जाता है, isn't it? So Yes sir. HTML was static. So this term was coined by Microsoft. Microsoft ने कहा कि भाई DHTML क्या है, एक डायनेमिक HTML है। बेसिकली ये कुछ नया नहीं है, उन्होंने इन सब के कॉम्बिनेशन को एक नया नाम दिया था। इन सब के कॉम्बिनेशन को, HTML 4.0 को, क्रॉस साइट सॉरी CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट और डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं बट इन थर्ड यूनिट। डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जावास्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर, जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड CSS जो है ये आपकी क्या है, CSS क्या करती है? Sir, styling. कैस्केड स्टाइल शीट्स। क्या है? Styles. कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML आपको पता है। सो इन सब के कॉम्बिनेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, डायनामिक HTML। तो ये कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, बट इट कंबाइंस द फीचर ऑफ वेरियस वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। तो HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट और डॉम को इन्होंने यूज करके इसको टर्म दे दी DHTML। तो इसमें से आपने CSS देख ली है। CSS क्या करता है? CSS आपकी एप्लीकेशन को Design. सुंदर सुंदर बनाता है ना, Yes, sir. उसको ब्यूटीफुल बनाता है, या उसको आप बोलोगे कि प्रेजेंटेबल बनाता है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, उसमें कुछ एक्शंस या कुछ इंटरेक्शंस जो है अलाउ करता है, वो हम देखेंगे इन द थर्ड यूनिट। और डॉम से हम डॉक्यूमेंट को पार्स कर सकते हैं। So we'll come back to all these technologies one by one, but you should be clear DHTML stands for dynamic HTML. It's not a programming language, it's not a markup language. It's a combination of features. कौन कौन से फीचर? HTML, CSS, JavaScript और DOM को मिला के इन्होंने बनाया, इसको नेम दिया HTML, DHTML। ये माइक्रोसॉफ्ट ने कब रिलीज किया था? जब इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलीज किया था 4th 1997 में, तो इसको नाम दिया था DHTML। Anyhow, now let's move to XML. सबसे पहले XML stands for, XML stands for Extensible markup language. Extensible Markup Language. Okay, क्या होती है Extensible Markup Language? Extensible Markup Language क्या होती है? ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जिस तरह की HTML है। और इसको डिजाइन किसके लिए किया था? कि हम डेटा को स्टोर कर सकें और डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकें। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग। हम डेटा को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें और डेटा को ट्रांसफर कर सकते. ट्रांसफर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये क्या है? इट इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसको कुछ समझाने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। और ये W3C मैंने आपको बताया था क्या है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को, वर्ल्ड वाइड वेब को आगे चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन उसको रेगुलेट करती है। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, इट्स ए कंसोर्टियम, ठीक है। तो W3C क्या है? एक कंसोर्टियम है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के लोग उसमें हैं जो कि क्या करते हैं, रेकमेंडेशन देते हैं कि इंटरनेट को कैसे होना चाहिए। ओके, Yes sir. ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि भाई इसके लिए कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए। ओके,
तो ये क्या है, इट्स ए टूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। अभी हम देखेंगे ये क्या है इतना। देखिए मैंने क्या करना है, कुछ डेटा सेंड करना है। किसको सेंड करना है, से टू टव, और कौन कर रहा है उसको, जैनी। और हेडिंग क्या है, रिमाइंडर डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। ओके, तो ये क्या है, डेटा है। किसने भेजा, किसको भेजना है, टॉप को। भेजा किसने है, जैनी ने। जानी ने। और उसका टॉपिक क्या है, रिमाइंडर होता है ना उसका हेडिंग। और क्या था, डोंट फॉरगेट मी मी दिस वीकेंड। दिस वीकेंड। ओके, सो अब आप देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये टू क्या है, ये भी एक टैग है ना, टैग। यस सर। फ्रॉम भी टैग है, हेडिंग भी क्या है, टैग है, बॉडी भी क्या है, टैग है, नोट भी क्या है, टैग है। सो एक्सएमएल जो है ये क्या है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। ओके, इसमें आपके पास सेंडर की इंफॉर्मेशन है, रिसीवर की है, हेडिंग की है, मैसेज बॉडी है। तो एक्सएमएल जो है ये एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ ए मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं है, हम भी अपना टैग बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक क्लास टैग बनाई, ठीक है। तो मैं यस सर। लिखूंगा, टीचर कौन है आपका, से यू से मनमीत सिंह इज द टीचर। ओके, देन यू कैन से स्टूडेंट कौन है, से वी हैव से आमिर, है ना, हम ऐड कर सकते हैं ना स्टूडेंट। फिर मीटिंग डिटेल। सो दीज आर नॉट प्री डिफाइंड टैग। HTML में आपने क्या पढ़ा, P1 P2 H1, सॉरी P H1 H2, ये फिक्स टैग थे, प्री डिफाइंड टैग्स थे। बट XML में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आप अपनी मर्जी से कोई भी टैग्स को यूज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी टैग्स को यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, XML में एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज और HTML में डिफरेंस क्या है। इन दोनों को हमने क्या किया है, ये जब बनाए गए थे इनके डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं। HTML का गोल क्या है, बताइए। सर वेब पेज डेवलपमेंट। डिस्प्ले करना डेटा को। HTML वाज डिजाइन टू डिस्प्ले डेटा, कि डेटा को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे और वो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। यस XML सर। का डिजाइन क्या था, कि हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे और कैसे सेंड करेंगे, ट्रांसफर करें। है यस। ना, ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो XML वाज डिजाइन टू कैरी डेटा, ओके, या ट्रांसपोर्ट डेटा। XML के टैग जो होते हैं वो, XML के टैग जो है आपके वो प्री डिफाइंड नहीं है। XML के टैग आपके, जैसे मैंने लिखा टीचर, टीचर आपने टैग कोई पढ़ा है पहले, नो सर। नहीं पढ़ा है ना हमने। बट जो HTML में टैग पढ़े, H1 टैग है, H2, ये क्या है, ये प्री डिफाइंड टैग हैं। बट अगर आप देखें फ्रॉम जो है या टू है, दीज आर नॉट प्री डिफाइंड टैग, इजंट इट। तो XML जो टैग्स यस। हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है, जबकि HTML के टैग आपके प्री डिफाइंड हैं। तो XML का पर्पस क्या है, इससे हम इजिली डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और इट सिंप्लीफाइज डेटा अवेलेबिलिटी। डेटा को हम इजिली अवेलेबल करवा सकते हैं अक्रॉस द एप्लीकेशन। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द रेफरेंसेस, मोस्टली W3 स्कूल्स के ही हैं। इनको आप यूज करके इनको काम कर सकते हैं। सो इफ यू कैन सी, दिस कंक्लूड्स आवर यूनिट 2। यूनिट 2 आपका इधर खत्म होता है। तो यूनिट 2 में हमने क्या पढ़े, HTML के टैग्स पढ़े, देन वी स्टडीड, क्या पढ़ा उसके बाद हमने, CSS कैसे होती है, कैस्केडिंग CSS सर। को कैसे सुंदर बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं। देन हमने पढ़ा उसका बॉक्स मॉडल, कल पढ़ा था ना, कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होते हैं, बॉर्डर क्या होते हैं। देन हमने आज पढ़े इनके फॉर्म्स, कि कैसे हम फॉर्म्स बना सकते हैं। ओके, so one more thing we will do is in the unit 3, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज जो आपकी प्रोग्रामिंग है इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है। ओके, जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके,
Then some portion of your server side programming. सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी आपका हम इसमें कर सकते हैं, करेंगे इनफैक्ट. एंड एजेक्स आपका एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल ये कैसे काम करती हैं. सो यूनिट 2 वाज अबाउट, यूनिट 2 में क्या था आपका कि वेब पेज बनाना. डेवलप पे एक वेब पेज बनाओ और उसको थोड़ा सुंदर करो यूजिंग सीएसएस स्टाइल्स यूज करके उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाओ. बट अभी तक ये सब क्या है, ये सब थे स्टैटिक. क्या थे? स्टैटिक. तो अगर मुझे उनको क्या करना है, डायनेमिक करना है, तो मुझे क्या आना चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए. जावास्क्रिप्ट आएगी तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक बना सकता हूँ. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. सो एनी क्वेश्चन प्लीज. नो सर. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई तो होगा. तो अटेंडेंस लिंक नहीं भेजी आपने? वो तो चलो हम कर देंगे, दैट इज नॉट ए बिग थिंग. इसमें बताइए कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो. आप कर रहे हो घर में, फॉर्म बनाया किसी ने अभी तक? यस सर. नहीं बनाया? यस सर, बनाए. So I will say stop presenting. So you can enter your, I'm going to send you the chat. So this is the link for the, this is the link for the attendance. तो अटेंडेंस का लिंक मैंने आपको सेंड किया है, सो यू कैन मार्क योर अटेंडेंस. और भाई आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है, मैंने आपको कल भी बता दी थी. सो अभी तक आप लोग का काफ़ी बुरी हालत है, तो इसको नॉन सीरियस मत लीजिए, अदरवाइज बाद में आपको ही मुश्किल हो जाएगी. Okay, so how many are present? Amir, Kamar, and Samir. Amir, Amir, Kamar. Okay, Samir is not coming. Samir, आपकी प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं हुई अभी. सर वो इंटरनेट का इशू रहता है सर बहुत, उसकी Okay. वजह से सर क्लासेस बीच बीच में मिस होते हैं सर. चलो वो एक आध तो हम कर सकते हैं, बट नॉट मोर. ओके, और आपको कुछ डाउट है तो बताइए. इफ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस, इफ यू हैव एनी डाउट. नो सर. कर रहे हो साथ साथ में कुछ? यस सर. ओके, सो विल मीट टुमारो. कल हमारी सुबह पहली क्लास है ना? ठीक है सर. तो पहली है कि दूसरी है, शायद 10 बजे है ना शायद. तो विल मीट टुमारो एट जो भी हमारी शेड्यूल्ड टाइम है उसमें. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. मुझे